جس میز پر خداوند رات کو بیٹھے، اور ایک اور بات چلتے چلتے، یہ عبادت جو آج ہم اس ٹائم پر کر رہے ہیں، آنے والے سال میں ہم اپنے چرچ میں کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ اپنے چرچ میں کریں گے۔ یہ ساتھ ہی وہ ساری جگہ یہ پلاٹ چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ عبادت نائٹ میں ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ ایوننگ میں ہوگی۔ اسی طرح سے میز سجا کر ہم اس رسم کو پھر سے تازہ کریں گے جس رسم کو خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر رات کو کیا تھا، اور یہ عبادت ایوننگ میں ہوگی۔ آج یہاں یہ دوپہر کے ٹائم اس لیے رکھی گئی کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہم سب کاموں کو شروع کر رہے ہیں، ساری رسومات کو جن کا تعلق دینداری سے ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کی رسومات کو بھی ترجیح دیں اپنی زندگی میں، اور یہ آہستہ آہستہ ہم سارے کام کریں گے۔ جو رسم یہاں میں کرنے والا ہوں، بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات آئے گی کہ یہ تو شریعت کے اندر تھا، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نیو ایئر میں ہم نے خدا کے کلام کے لیے ایک صندوق بنایا اور اس میں بائبل کو رکھا اور خدا کے کلام کو عزت دی، اور میرے سننے میں آیا کہ لوگوں نے یہ کہا تو شریعت والے کام پھر شروع کرا دیتے نئے لوگوں نے۔ یہ باتیں میرے سننے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ پیچھے دیکھیں، وہ گولڈ کی میز پڑی ہوئی ہے، پیچھے دیکھیں۔ اسرائیلی جب بیٹھتے، جب مقدس ہیکل بنائی گئی تھی، یہ آج یہ خیمہ آپ دیکھ لیں، اسی طرح سے یہ خیمہ لگایا گیا جس طرح سے بزرگ موسیٰ لگایا کرتا تھا۔ اے خیمہ اونجی لگا ہوئے جی میں بزرگ موسیٰ لاؤندا ہے، ٹھیک ہے، اور اس خیمے کے اندر میز بنائی جاتی، اور اس میز پر خدا اسرائیل سے کہتا کہ 12 روٹیاں ترتیب سے چننا، 6 روٹیاں، 2 قطاریں بنانا۔ کیا بنانا؟ 2 قطاریں بنانا، اور ان 2 قطاروں پر 6 روٹیاں ترتیب سے رکھنا، اور جب وہ روٹیاں رکھی جاتی اور وہ 12 روٹیاں تھیں، تو یہ یادگاری ہوتی کہ اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، اور خدا اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ہر سبت وہ میز پر 12 روٹیاں سجاتے، اور ہر سبت خدا کے حضور کاہن بزرگ ہارون ان روٹیوں کو خداوند کے حضور ہلاتے، اور خدا اپنے حضور، بائبل کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے یہ میز، یہ روٹیاں میرے حضور یادگاری کے طور پر ہیں کہ میں نے اسرائیل کے 12 قبیلوں کے پاس کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ دھیان سے سنو، ہر سبت کو وہ 12 روٹیاں رکھتے اور خداوند کی میز کے سامنے رسم کرتے، اور وہ یادگاری کے طور پر ہوتی کہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کے پاس کبھی بھی روٹی کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ پہلے سبت کے دن روٹیاں بنا کر کاہن کو دیتے، اور کاہن ترتیب کے ساتھ 12 روٹیاں خداوند کے سامنے حاضر کرتے ہوئے۔ جب خداوند یسوع نے یہ رسم کی تو یسوع مسیح خود بیٹھے اور اس نے 12 رسولوں کو بٹھایا، اور ان کے درمیان جو اس نے رسم ادا کی تھی، کسی دن میں ضرور رسم پر سکھاؤں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ ٹینٹ اگوں لگتے رہنے نے، اگوں لگتے رہنے نے، انج دے ڈھول اتھے وجتے رہنے نے، آپ پریشان نہ ہو۔ بڑے بڑے خیموں کو آپ یہاں دیکھو گے، ایک ٹائم آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب وہ اس طرح سے خداوند اس میز پر بیٹھے اور اس نے 12 رسولوں کو بٹھایا اور ان کے ساتھ یہ رسم کی، وہاں 12 روٹیوں کے ساتھ رسم کی جاتی تھی، یہاں خداوند نے 12 رسولوں کے ساتھ رسم روٹی کی ہی کی، لیکن اسے اپنے بدن سے تشبیہ دیا۔ وہ 12 روٹیاں اسرائیل کے پاس کبھی رزق ختم نہیں ہوتا تھا۔ جب خداوند نے وہ رسم کی تو یعقوب کے 12 بیٹوں کو وہ یاد کرتے تھے،
और खुदावंद के 12 रसूलों को उसने बिठाया, बिठाकर उसने वो रस्म अदा की। पता क्यों? क्योंकि जब ये मेरा बदन, मेरा गोश्त खाएंगे तो यही बदन इनके बदनों में जाएगा और ये बदन पूरी जमीन पर फैल जाएगा। ध्यान से सुनो, इस्राएली 12 रोटियों की रस्म करेंगे, उनके पास कभी रिज्क खत्म नहीं होता। खुदावंद ने ये रस्म 12 रसूलों के साथ की और उसने कहा कि ये मेरा बदन है। अपना बदन रसूलों को दिया, रसूलों ने आगे बांटते बांटते आज दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग मसीह का बदन बन चुके हैं। लाखों करोड़ों लोग मसीह का, वही रस्म होने वाली है, सिर्फ मेज को हमने खूबसूरत करके डिजाइन किया है। मैं ये समझता हूं कि उस मेज पर जिस्मानी रोटियां थी जिनको खुदा बरकत देता था, और ये मेज वो है जिस पर खुदावंद का बदन है। किसका बदन है? आप मुझे बताएं, इस मेज को कितनी इज्जत देने की जरूरत है? एक तो कोई बंदा भी मूवी नहीं बनाएगा, कि नहीं बनाएगा, सब ने अकीदत देनी है। वो फटाफट एवं ना होए, समझ रहे हैं? आप देखें YouTube पर ये सारा कुछ मौजूद है। आप ये देखें, आ मुंडे की ड्यूटी है लाइए भी तू साम सूंभ ली सारा कुछ, ठीक है? तुसी ये 250 का फोन लैके ते 1 लाख का प्रोग्राम खराब कर छड़ना। कितनों को मेरी समझ आइए? सेल्फी कोई नहीं बनाएगा, मूवी कोई नहीं बनाएगा। जब खुदा के बंदे वहां से मेज उठाएंगे, भाई इस तरह से तरतीब में खड़े हो जाएंगे, उनके चेहरे इस तरफ होंगे, बहनें इस तरह से तरतीब में खड़ी होंगी, चेहरे इस तरफ होंगे, और मिलकर हम वो ज़बूर गाएंगे, कलवरी दे सहारे पापी। कितनों को मेरी बात सारी समझ आ गई? हमने रस्म कैसे करनी है? आपां इंज खलोना, भैणा ने इंज खलोना, सारियां लैन सिर पिछे आपां आप ही खलोना, जिथे लैन ठीक ना मैं उत्थे ही आवाज दे देनी है। ठीक हो गया? इत्थे भाइयां ने खलोना इंज, फेस ऐसे होंगे सबके, और मिलकर सिर्फ ज़बूर गाएंगे। समझ आ रही है? और हम खुदावंद की मेज को इज्जत देंगे, क्योंकि इस मेज पर हमारी जिंदगी है, इस मेज पर हमारी बरकत है। बाइबल के अंदर लिखा है, मुबारक है वो जो खुदावंद की मेज से खाता है। मुबारक है वो जो खुदावंद की, आपा फुफड़ दी मेज तो खादा है, फुफी दी मेज तो खादा है, लाड़े दी मेज तो खादा है, आपा रिश्तेदारां दी मेज तो खादा है, आपा चोरी दी मेज तो खादा है, आपा बेईमानी दी मेज तो खादा है, पर अज आपा जिंदगी वाली मेज तो खाना है। अज आपा कित्थों खाना है? जिंदगी वाली मेज तो मेज को इज्जत देनी है सबने। भाई अजमल है, भाई रजाक है, और भाई शरोज कितने गए? पादरी साहब गो, ये हमारे नन्हे से पादरी साहब गुजरावाला में खिदमत करते हैं। हालेलुया, आमीन। चले जी, आंखें बंद करें, अपना दाना हाथ उठाओ खुदावंद के सामने, उसको बोलो मैं तेरी मेज पर आया हूँ ताकि मैं तेरे नाम को जलाल दूं। मुबारक है वो रसूल जिन्होंने तेरी मेज से खाया, दुनिया में वो तेरे नूर बन है। जब मेज आपके दरमियान से गुजरेगी, खुदा का रूह आपके दरमियान से होकर के गुजरेगा, उसकी रूह आपके दरमियान आपको छू करके गुजरेगी। ये खुदा का रूह मेरे दरमियान से गुजर रहा है। जितनी आपके अंदर अकीदत है वही खुदावंद आपके साथ करने वाले हैं। आपके अंदर जितनी अकीदत होगी उसी के मुताबिक खुदावंद आपको बरकत देंगे। आपकी अकीदत के मुताबिक, आपकी अकीदत जैसी आपकी अकीदत है, हालेलुया, आप दिल से अकीदत करोगे आज उसकी, मेरा ईमान है आज के बाद आपके घर की मेज का शोर खत्म हो जाएगा, आपकी घर की मेज पर लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप खुदावंद की मेज पर हाजिर हो। बोलो मेरी मेज मुबारक होगी क्योंकि मैं खुदावंद की मेज पर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद पे थैंक्स बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। री बा 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 रा से खोलो रे दे रा बा 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 रा रे बे 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 रे शका बा रबी। अभी उसका मेज जब आपके दरमियान से गुजरेगा आप खुदावंद का जलाल देखोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे यीशु दे सहारे पापी बचे देने सारे, मेरे यीशु दे सहारे पापी बचे देने सारे, यीशु दे सहारे पापी बचे देने सारे।
سجدہ کرو، جو خدمت گزار بیٹیاں ہیں خداوند کو سجدہ کرو، اسے کہو کہ تیری میز پر خدمت گزار رسول حاضر آئے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیں۔ بزرگ پال نے جو تیتس کی کلیسیا کے نام خط لکھا، اس کا دوسرا باب، اس کی 12ویں آیت مقدسہ پر ہم بات کریں گے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ اسے ضرور کھولیں۔ ہاللیلویا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یا جس میسج پر، جس پیغام پر میری آواز پیچھے سے ہی آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ ایک ٹیسٹمنی تھی پچھلے سنڈے، بہن کا بازو کام میں نہیں آتا، وہ اپنے بازو کے لیے بڑی پریشان تھی۔ خداوند نے ان کی زندگی میں کام کیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹیسٹمنی کے لیے ضرور آئیں۔ آپ لوگ سنیں بڑے دھیان سے۔ تیتس کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 12ویں آیت ہے۔ میں اسے آپ کے لیے پڑھتا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ یہاں لکھا ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دینوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ سب بولے آمین۔ ساتھ والے سے کہیں آج کا کلام آپ کو مبارک ہو۔ آمین۔ گرمی جی کدی جنجے گئے ہو؟ اتنے جڑا حال ہوتا ہے پتا، جدو پرانیاں جنجاں جاندیاں جہاں منجیاں تے بہندیاں تے بھڑے حال تے بانکے دیہڑے تے وہ ایک پلیٹ چولاں لئی ساری دیہڑی بہ رہنا، ایسا ہوا کرتا تھا کہ نہیں؟ پر یہاں ایک پلیٹ چاول نہیں، زندگی لینے آئے ہیں۔ آمین۔ مجھے کچھ بھائیوں نے کہا سر گرمی بڑی ہے، سر جی میں رجحال چ ٹر جانے۔ میں کہا بھائی تسی کیڑیاں گلاں کردے جے؟ 2-2 لاکھ کا کراؤڈ ہے لوگوں کا چرچ کا، اور ٹینٹوں میں عبادت کر رہے ہیں۔ 2-2 لاکھ لوگ ہوتے ہیں اور ٹینٹ لگا کر عبادت کر رہے ہیں۔ اور آپ کتنے ہوں گے زیادہ سے زیادہ؟ کیوں جی کتنے کو ہوں گے؟ تقریباً 700-800 اتنے لوگ ہیں آپ۔ ہاللیلویا۔ اور انتظامیہ نے بھرپور کوشش کی تھی، یہ کولر پکھے پہ جیاں نو گرمی۔ آمین جی۔ یہ بہن ہے، ان کا بازو کام نہیں کرتا تھا۔ مائک نو نیڑے رکھ گل سنی، بتائیں ذرا۔ یسوع میں آپ سبوں کو سلام۔ تقریباً 3-4 سال پہلے میرے بازو میں انفیکشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے پٹھے کا کھچاؤ ہے، لیکن میں نے بڑی زیادہ میڈیسن کھائی تھی، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا۔ بعد میں جب زیادہ مسئلہ ہو گیا تھا، ایسے میرا بازو رہتا تھا، ایسے میرا بازو رہتا تھا، لیکن جب تقریباً 5-6 مہینے پہلے پھر ایسے میرا بازو ہو گیا تھا۔ ایسے میرا بازو ہو گیا تھا، پھر میں کوئی کام بھی نہیں کر پاتی تھی، اپنے بچوں کا کوئی مطلب روٹی وغیرہ کو بڑا مسئلہ بنتا تھا، اور درد اتنی ہوتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ دوائیاں اتنی روز انجیکشن لگوا کے درد کے
दवाई खा खा के मेरा बुरा हाल हो गया था। लेकिन जब फिर मैं एक दिन भाई के पास आई तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ऐसे ऐसे मतलब प्रॉब्लम है, तो मुझे भाई ने बोला आप मेडिसिन खाना छोड़ दो, आपने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। फिर आपने भाई ने बोला कि आप चर्च आएँ, प्रे करवाएं, और जैसे मैं बोलूँगा आपने प्रे करनी है, आपने फास्टिंग करनी है, तो आप ठीक हो जाओगे। और यीशु के फजल से आज मेरा बाजू देखिए। हालेलुया। सर इधर ला के भाव। और आपके बच्चे क्या करते हैं? ये इनकी बेटी है, ये मुझे बता रही थी, ये चर्च नहीं जाते थे, घर के सामने चर्च है, ये कभी चर्च में नहीं जाते थे, लेकिन अब इनके बच्चे कहते हैं छेती चलो सी गिरजे जाना है। ये मेरा छोटा सा बेटा है, तो इससे पूछे कि कौन से चर्च जाना है, पास्टर का नाम बताओ, कौन से चर्च बताओ। आप ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये देखें, ये बच्चा देखें, ये देखें, किसके चर्च जाना है? ये देखें, मैं इसको गवाही समझता हूँ, मेरे नजदीक ये बड़ी टेस्ट बनी है। ऐसे बच्चे, वो कहता है मैं चार्ल्स पादरी दा नहीं, खुदा की ग्रेस है, खुदा की, आप समझ रहे हैं? अगर ऐसे छोटे बच्चों को फिक्र है कि गिरजे जाना है, तो वड्डियां नूं तो नहीं समझाने दी लोड़ क्या है? आवे खुदा बच्चों पर अपनी ग्रेस, कोई संडे स्कूल नहीं है, कहीं भी नहीं ये बच्चे गए, ठीक है, और ये अपने माँ बाप को कहते हैं कि हमने चर्च जाना है। कहाँ जाना है? ते वड्डियां नूं पादरी बुलाए तो किड्डे तो खाली गल है। हालेलुया, आमीन जी। तो ये पिछले संडे भी इनकी एक और टेस्ट मनी है। चर्च में बच्चे बाइबल स्कूल में आते हैं, ठीक है, तो बाइबल स्कूल में एक दिन हम ये जगह के मसले में काफ़ी लेट हो गए, तो बाइबल स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे मैंने कहा कि चलो आज प्रेयर करते हैं। जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मैं, खुदा की रूह ने मुझसे कहा कि ये जितनी भी बेटियां हैं इनके लिए प्रेयर करके बचपन की लानतें चली जाएं यीशु मसीह के नाम पे। कौन सी लानतें? बचपन की लानतों के लिए प्रेयर करवाई मैंने इन बेटियों से कि बचपन की लानतें जिंदगी से बाहर निकलें। बचपन में आप किसी जगह पर जाते हैं, किसी से टॉफी, ठंडा, मिठा, गोल गप्पा, ये वो बहुत सारी चीजें हमारे बच्चे लेकर खा लेते हैं और उनका इल्म नहीं होता। आप बताएं काका, जरा माइक को नजदीक करके। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हम जब छोटे थे तो हम अपने ननिहाल रहते थे और उनके घर के पीछे एक दरबार था और सब बच्चे वहाँ पे खेलने के लिए जाते दरबार का नाम ही लेना। और वहाँ पे जो भी वो खाने के लिए लाते हम लोग उसे खाते थे। फिर जब मैंने बपतिस्मा लिया और चर्च आने लगे, और जब भी मैं चर्च आती थी मुझे ऐसा लगता जैसे दिल खराब होता था, लेकिन इतने सालों से कभी भी मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। जब उस दिन क्लास में भाई ने दुआ करवाई बचपन की लानतों के लिए, तो उसके बाद पाम संडे से पहले फ्राइडे को मुझे वॉमिटिंग हुई और उसके साथ ब्लड भी आया था। और उसके बाद मैं जब पाम संडे को चर्च आई तो फिर मुझे कोई भी बेचैनी या कुछ भी ऐसा नहीं फील हुआ। वो पानी जो आप बता रहे थे, और वो पानी जब मैंने वॉमिटिंग की इतना कड़वा पानी था और उसके साथ ब्लड भी आया था। और आपको समझ आ रही है? इस बेटी ने कहा ये गैर जुबानों में प्रेयर करती है। सुने बड़े ध्यान से, ये चर्च भी जाती है, पानी का बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन जब कभी भी चर्च में प्रेयर होती तो इसके अंदर फीलिंग होती कि बस मैं ओणवी मैनू वॉमिटिंग यानी उल्टी कर दूं, मैं कर दूं, लेकिन ऐसा होता नहीं था। जब बचपन की लानतों को डांटा कि जिंदगी से बाहर निकल जाए, हर वो लानत जो बचपन से मेरे साथ जुड़ी है, तो ऑटोमेटिकली इस बेटी को वॉमिटिंग होना शुरू होगी। और इसने कहा भैया प्रेयर करते मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं वॉमिटिंग करूं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब बताने का मेरा ये पर्पज होता है कि बहुत सारी चीजें कलीसिया के साथ ऐसी जुड़ी हैं जिनके बारे में कलीसिया को भी इल्म नहीं है, कलीसिया भी उनके बारे में नहीं जानती कि हमारी जिंदगी में या हमारी जात से क्या जुड़ा हुआ है। और जी कोई गवाही आला आ जाए। कलीसिया मेरे नूं लामे देंदे रहिंदी, भाई साहब तुसीं साडी टेस्ट बनी नहीं लेंदे, ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश होती मैं ज्यादा कलाम को जो है वक्त दूं। मेरी ये टेस्ट मनी है कि मैंने भाई से पिछले मंडे मैंने भाई से कहा भाई मैंने फास्टिंग स्टार्ट किया, फ्रूट फास्टिंग, और उससे मुझे इतनी बरकत मिली है कि मेरे जिस्म पूरा स्वेल रहता था, हर टाइम हाथ पाँव और घुटनों में इतनी तकलीफ। आज भी मेरी फ्रूट फास्टिंग है और मेरा इतना खुदावंद का शुक्र है कि मेरा जिस्म फूलों से भी हल्का हो गया। खुदावंद ने मुझे इतनी शिफा बख्शी है, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। आमीन जी। बदन का स्वेल हो जाना, टेंशन रहनी,
सिर्फ घर में मैं फ्रूट फास्टिंग के लिए बेटी ने प्रेयर करवाई है और वो खुद ही ठीक होना शुरू हो गया। ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अजीब होते हैं सुनने में भी, लेकिन हम इनको समझ नहीं पाते जिंदगी में। आज बाइबल मुकद्दस में जो तीतस का खत मैंने आपके सामने पढ़ा है, मैं उस आयत को फिर दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा है, और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दीनी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी, रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे। परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारे। मैंने जो टॉपिक इसका रखा था, अवॉइड योर ब्लेसिंग। अवॉइड का मतलब टाल देना भी होता है, या बचाना, या किसी चीज को नजरअंदाज करना, किसी को देखकर टाल देना, किसी चीज को अवॉइड करना, उसको नजर में ना लाना, इस्तेमाल में ना लाना। ठीक है, पर इस आयत के अंदर जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है परहेजगारी। क्या है? साथ वाले से कहें, आज हम परहेजगारी पर बात करेंगे। परहेजगारी क्या होती है? हमारे नजदीक जो परहेजगारी है वो कोई खास या कोई बड़ी चीज नहीं है। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं ये गुड फ्राइडे की इबादत है, और हमारे नजदीक आपके माइंड में सूली या सलीब या से बहुत सारे काम चल रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, खुदावंद की मेज के सामने हम हाजिर हैं, लेकिन आप लोग इस पैगाम पर तवज्जो दें जो मैं शेयर करने वाला हूं कि किसी चीज को टालना, किसी को नजरअंदाज करना, किसी से अलग रहने में कितनी बड़ी बरकत है। बाइबल का खुदा हर किसी को बरकत देता है। उसने दुनिया का पहला इंसान जो बनाया, उसको सबसे पहला काम जो खुदा ने किया, अगर किसी को याद हो तो खुदा ने उसको बरकत दी। क्या दी? बरकत दी। और उससे कहा, भरो फलो, जमीन को मामूरो, महकूम करो। ध्यान से आपने सुनना है, खुदा अपनी बरकत में परहेजगार होना, अपनी बरकत में, अपने फन के अंदर परहेजगार होना, अपनी ब्लेसिंग के अंदर परहेजगार होना, अपनी ताकत के अंदर परहेजगार होना, अपनी अनाइंटिंग और अपनी पावर के अंदर परहेजगार होना। अवॉइड योर अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को नजर में ना लाना, अपने ओहदे पर ध्यान ना देना, बल्कि अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देना। आपने जब इसको बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, आपको वैसे ही सारी बातें समझ में आएंगी कि बाइबल का खुदा जब बरकत देता है तो बरकत से परहेज करने के लिए भी कहता है। बाइबल में जो पहला शख्स खुदा ने बनाया उसका नाम आदम था, और खुदा ने बागे अदन लगाकर उससे कहा, परिंदे तेरे इख्तियार में हैं, परिंदे, समंदर के जानदार तेरे इख्तियार में हैं, परिंदे तेरे इख्तियार में हैं, समंदर के जानदार तेरे इख्तियार में हैं। तू इन पर बादशाह है और तू इन पर बादशाही करेगा। तू इन पर बादशाह है और तू इन पर बादशाही कर। लेकिन एक बात खुदा ने से, पूरे बाग एदन के अंदर खुदा ने फ्रूट लगाए। क्या लगाए? आपके अंदाजे में कौन कौन सा फ्रूट होगा? केड़ा केड़ा फ्रूट होगा? मैंगो, बनाना, एप्पल, सबके नाम आपको आते हैं। बागे अदन का जो ब्लेस पॉइंट है, ध्यान से सुनो, वो फ्रूट था। खुदा ने आदम को जो वहां पर दौलत दी थी वो फ्रूट था। जिस चीज को वो पूरे अदन में खाता, यूज करता, वो सिर्फ फ्रूट था। ध्यान से सुनो, वो फ्रूट था। जब वो फ्रूट को यूज करता, फ्रूट को खाता, जानवरों पर उसका अख्तियार था, पर वो मछलियों का बारबेक्यू नहीं कर सकता। मछलियों पर उसको, परिंदों पर इख्तियार है, पर चिड़ा मार के खा, वो चिड़े नहीं खाता, वो मछली का गोश्त नहीं खाता। जानवरों पर उसको इख्तियार था, पर कोई भी बकरी लेला ज़िबा नहीं कर सकता। खुदा ने उसको ब्लेस किया और उसको जो दौलत दी, उसको जो ताकत दी, वो फ्रूट थी। वो क्या थी? कि बागे अदन में जितने भी फ्रूट है, लिखा है बेरोक टोक। क्या लिखा है? बेरोक टोक, हर दरख्त का फल खाना, हर दरख्त का। पर बाग के दरमियान में खुदा ने एक दरख्त लगाया और कहा, इस फल को, अब उसकी ब्लेसिंग फ्रूट था, उसकी ताकत फ्रूट था, उसको खाना भी बरकत वो दिया पे जड़ी इस्तेमाल करो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उनको इस्तेमाल करते हो, अगर आपके पास घर है आप उसको बरकत कहते हो तो आप उसको इस्तेमाल करते हो, आपके बच्चे आप उनको बरकत कहते हो तो आपके बच्चे आपके इस्तेमाल में आते हैं, माँ बाप उनके इस्तेमाल में आते हैं। घर आपकी ब्लेसिंग है, घर आपके इस्तेमाल में आता है। फ्रूट
उस अदन की दौलत है। आपने ध्यान से सुना, 5 मिनट अदन के अंदर रहना है, उसके बाद आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अदन का जो फ्रूट था, जो अदन के अंदर था, जो बाग अदन के अंदर फ्रूट था, वो आदम की दौलत थी। वो आदम की क्या थी? क्योंकि उसे वही खानी है, उसी को खाना है, उसी में चलना है, उसी में जीना है। उसकी वही दौलत थी, उसकी वही ब्लेसिंग थी, और वही उन दोनों की ताकत थी। उनसे कहा हर फल को खाना, सारा फ्रूट खाना, पर एक फ्रूट को खुदा ने उनको नजरअंदाज करने को बोला कि ये बाग के दरमियान फ्रूट है और सारे फ्रूट ही फ्रूट हैं, पर आप एक फ्रूट नहीं खाना, आप एक फ्रूट नहीं खाना। एक फ्रूट से परहेज करने को बोला है, एक फ्रूट को अवॉइड करने को बोला है, नजरअंदाज करने को बोला है कि बाबा जी केला ला के खाना, अमरूद ला के खाना, स्ट्रॉबेरी खाना, बनाना खाना, पर जरा सेंटर च लाया वा, जब तू गुजरे, ये वो फ्रूट है, ये वो फ्रूट है, और इसको ये समझ लेना ये तेरा है ही नहीं, ये फ्रूट तेरा है ही नहीं, इस पर तेरा कोई हक नहीं। सारे अदन पर तेरा हक है, सारे अदन का तू मालिक है, तू प्रेसिडेंट है, पर पूरे अदन में, पूरे अदन में, पूरी बादशाही में एक फल तेरा नहीं है। सारी दुनिया दियां औरतां तेरियां भैणां ने, पर एक तेरी, हुण समझ आऊगी। सारी दुनिया दियां कुड़ियां तेरियां, ते एक वैसी समझ आ जाएगी। सारी दुनिया दे मर्द तेरे की ने, पर एक, सारे अदन का फ्रूट खाना, पर एक, हुण समझ आती रहेगी। सारे अदन का फ्रूट खाना, पर एक फल मत खाना, उसको अवॉइड करना। जब तू गुजरे, जदों दोवें मियां बीवी नंगो, हवा इनू नहीं खाना करना, ठीक है, ओके चला जा, मैंगो खा लेनी, आप बनाना, पर एक फल खुदा नजरअंदाज करने के लिए, ये उसकी आजमाइश कह लें, आप जो भी कह लें। जमीन पर आज भी आपका घर अदन है, थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा। आपका इलाका अदन है, आपकी जिंदगी बागे अदन है, थोड़ी देर के बाद मैं बताने वाला हूं। परहेजगारी खुदा ने उसको बताई, उसे कहा सारी ब्लेसिंग तेरी है, लेकिन एक फ्रूट तेरा नहीं है। सारा इख्तियार तेरा है, सारी बरकतें तेरी हैं, जमीन की बरकतें तेरी हैं, समंदर की बरकतें तेरी हैं, जानदारों की बरकतें तेरी हैं, पर एक फ्रूट तेरा, एक फ्रूट तेरा। तुसी अलमारी च 15 जोड़े रखो, सारे जोड़ियां च जेड़ा मर्जी पा ली, पर ओला जोड़ा ना पाई, वेले ने उही ही पाना। ये बीमारी आपां नूं अज तो नहीं लगी, अज तो ये अदनों ही टुरी आई है। ध्यान से फिर सुनो, देखो मैं वहीं पर हूं। सारा फ्रूट खाना है, सारी ब्लेसिंग तेरी है, सारा इख्तियार तेरा है, पर आपां यह फ्रूट नहीं खाना। बस ये परहेजगारी थी, ये खुदा ने कहा इसको अवॉइड करना, इससे इस पर नजर नहीं लगाना, ਇਹਦੇ ਤੇ नजर नहीं लानी आपां, ये आपां दा है ही नहीं। अब ये फ्रूट उसकी रास्तबाजी भी है, और यही फ्रूट उसके लिए गुनाह बन जाएगा। वही चीज आपकी रास्तबाजी होती है, और वही चीज हमारे लिए गुनाह बनता है। जब उन्होंने उस फ्रूट को, उस फल को खाया जिससे खुदा ने उनको नजरअंदाज, अवॉइड करने को कहा, इग्नोर करने को कहा, पे इनू इग्नोर करे जे ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀਓ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ उही कीता। खुदा ने बाग एदन से छुट्टी करवा दी। क्या करवा दी? छुट्टी करवा दी। फिर खुदा ने एक बंदा जमीन पर पकड़ा, उसका नाम बुजुर्ग इब्राहिम था। वो ईमान का रास्तबाज था, उसमें एक सिफ्त थी कि वो ईमानी तौर पर था, और ईमान के अंदर उसको जो पहली कुर्बानी देने के लिए, नजरअंदाज करने के लिए खुदा ने कहा, ध्यान से सुनो, सिर्फ 10 मिनट आपने मुझे देने, और दोबारा मैं थले आने वाला ही है, बस ठीक हो गया। खुदा ने इब्राहिम को पकड़ा और उसे नजरअंदाज, जैसे ही पकड़ा और उससे कहा अपने माँ बाप को, अपने नातेदारों से इग्नोर कर दे, नजरअंदाज कर दे और आगे बढ़। जब वो आगे बढ़ा, आगे चलता गया, तो खुदा ने उसे फिर कहा अपने बेटे इस्माइल को अपने पास से दूर कर दे, अपने पास से दूर कर दे। जब वो और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, तो एक टाइम आया, फिर उसने उसे कहा इसहाक को भी अपनी नजरों से दूर कर दे। वो ईमान में बढ़ता गया और चीजों को, रिश्तों को, नातों को इग्नोर करता गया, इवॉइड करता गया, और बढ़ता बढ़ता आज उस ईमानदार इब्राहिम के नाम की जो कलीसिया, उनकी तादाद पता कितनी है? वो ईमानदार बंदा जिसका नाम बुजुर्ग इब्राहिम था,
वो ईमानदार बंदा जिसका नाम बुजुर्ग इब्राहिम था, उसकी कलीसिया 20 लाख लोगों की थी। कितने? एक ईमानदार बंदे ने रिश्तों को नजरअंदाज किया, बेटों को नजरअंदाज कर दिया खुदा की खातिर, और उसकी जिंदगी में आज भी लोग उसको ईमान से जानते हैं। खुदा ने इब्राहिम को बड़ी बरकतें दी थी, उसके पास बड़ी दौलत थी, लेकिन खुदा ने कहा अपने पुੱਤ ਨੂੰ इग्नोर कर दे, अपने पुੱਤ ਨੂੰ उसको साइड पर कर दे, उसको साइड पर कर। फिर देख, अब बाइबल का खुदा ये कौन सा फलसफा हर इंसान के आगे रखता है। खुदा ने एक कौम को लिया, उसका नाम बनी इसराइल था। बनी इसराइल को खुदा ने जब एक कौम बनाया, तो कौम बनाते सारी खुदा ने उनसे कहा 12 पुत्र तेरे ते एक, उसने कहा पहलोठे बेटे को नजरअंदाज कर देना, वो मेरा है। फिर देखो औलाद की बरकत दी और उनसे कहा पहलोठे बेटों को नजरअंदाज करना, पहलोठी बेटी हो या बेटा हो वो मेरा होगा। बरकत में परहेजगारी, ध्यान से सुनो, बरकत में परहेजगार होना। खुदा ने इसराइल को ब्लेस किया और उनसे कहा अगर तुम्हारे पहलोठे बेटे हो तो वो मेरे हैं। पहलोठा बेटा एक ही होगा। बात फिर ध्यान से सुनो, एक ही है, एक फ्रूट तूने नहीं खाना। कलीसिया आज परहेजगार नहीं है, कलीसिया आज परहेजगार नहीं है। वो एक दिन अपनी ब्लेसिंग में लोग परहेजगार नहीं, अपनी बरकत में लोग परहेजगार नहीं, इसलिए लोग गिरते हैं, बार बार गिरते हैं। प्रीस्ट भी गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, क्योंकि लोग अपनी ब्लेसिंग के अंदर परहेजगार नहीं, अपनी ताकत के अंदर परहेजगार नहीं। खुदा ने जो उनको दी है, खुदा ने जो उनको, आदम को पूरे अदन की ताकत दी और एक फ्रूट से परहेज करने को बोला। इसराइल को, उस कौम को खुदा ने बेटे दिए, बेटियां दी और उनसे कहा पहलोठा बेटा, पहलोठे से परहेज करना। ये तुम्हारा, अगर तुम्हारी भैंस 10 जानवर पैदा करे तो एक जानवर, एक से परहेज करना। खुदा ने इसराइल से कहा 6 दिन तुम्हारे और 7वें दिन से परहेज करना। 7वें दिन को क्या करना मेरी? 6 दिन तुम्हारे और 1 दिन। आप देखते जाओ, खुदा अदन से लेकर आज तक कलीसिया को परहेज बताता है। 1 दिन से परहेज करना, 6 दिन तुम्हारे और 1 दिन। पर कलीसिया परहेज, ये परहेज पता कदों कर दी है? जदों कोई मैटर से परहेज करे। ये देखेंगे वही मैटर है। खुदा जमीन पर हर बशर के साथ ऐसा करता है और उसको सिखाता है। हमें बीमारियां परहेजगार बनाती हैं, क्या नहीं बनाती? परा लै गया, मैं नहीं खा सकता, परा लै गया, बनी आई आदत पई कि ना। लोग परहेजगार नहीं है, उनकी जिंदगी अपनी बरकत में परहेजगार नहीं है, अपनी ताकत में जो उनके पास है उसमें वो परहेजगार नहीं होते। आगे सुनो, बाइबल में खुदा ने जब इसराइल को बरकत दी, उनसे कहा 7वें दिन से क्या करना? परहेज करना 7वें दिन से। और अगर आप बच्चों को देखो तो बच्चों में भी खुदा कहता है पलोठे बच्चे तो परहेज करो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार ना पायो, ये मेरा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार। आदम ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार, ਇਹ ਬੂਟਾ मेरा। पर ਆਪਾਂ ਉਹੀਓ ਹੀ ਬੂਟਾ ਖਾਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ने, हम उसी बेटे से ज्यादा प्यार करेंगे जिसे खुदा ने अपने लिए। पर कलीसिया परहेजगार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अपनी बरकत में खुदा परहेजगारी हर इंसान, ये पौल कहते हैं तीतुस के लिए, कहता है अपनी जिंदगी, अपनी मुसाफरत का जमाना परहेजगारी के साथ गुजार। किसके साथ? जो बंदा अपनी जिंदगी में परहेजगार नहीं है वो जल्दी मरेगा। कलीसिया की मौत, लोगों की मौत जो है वो परहेजगार ना होने की वजह से है। लोग परहेजगार नहीं, खाई आउंदे ने जो लब्बे सट्टी आउंदे ने, वेखी कोल्ड ड्रिंक तो बाद चाह बावा लोया है मैदा तू आउण दे, कोई टेंशन नहीं, छुट्टी आउंदे ने फिर जांदे बस। तो की भाई आप समझो ये ना परहेजगारी के नतीजे हैं। इसी तरह खुदावंद ने इंसान को स्पिरिचुअल परहेज भी बताया कि आपको करना है। मैं अभी बाइबल में से आपको सिर्फ प्रूफ दे रहा हूं, अभी मैं जब नीचे आऊंगा तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। बाइबल ध्यान से पढ़ो। खुदा कहता ब्याह कर लो, क्या कर लो? और बीवी से भी परहेज करने को उसने बोला है। नहीं मानोगे ना तुसी, मैं दसना। बाइबल के अंदर लिखा है बीवियां वाले गोया ऐसे हो कि गोया बीवी नहीं रखते। एदा की मतलब होया? परहेज होया। बीवी वाले उन्हें एक तो छड़ के 2-3 कर लेंगे,
उन्होंने कहा परहेज ही कड़ी गल है। ध्यान से सुनो, लिखा बीवी वाले गोया ऐसे हो कि बीवियां नहीं रखते, वो कहता इससे भी परहेज करो। और बीवियों के लिए भी यही है, अगों भावे मनो तो भावे, मैंने 3 दिन का बताया हुआ है अगर किसी को याद हो, ये लिखा हुआ इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। खुदा देखें, आप नेहदनामा भी पढ़ो, यही लिखा हुआ है। सारी बाइबल परहेजगारी से बड़ी पड़ी है। अगर मैं आपको शमसून के बारे में बताता हूं, वो परहेजगार नहीं था अपनी ब्लेसिंग के अंदर, उसके पास बड़ी पावर थी, शेरों के मुंह खोल देने वाला बंदा है, लेकिन परहेजगार नहीं था अपनी जिंदगी के अंदर। शमसून अपनी जिंदगी में परहेजगार नहीं था, बरकत बड़ी थी उसके पास, खुदा की रूह उस पर नाज़िल होती, शेरों के मुंह फाड़ देता, लेकिन अपनी ब्लेसिंग के अंदर परहेजगार नहीं था, अपनी ताकत के अंदर परहेजगार नहीं था। और उसकी बादशाही का टाइम 20 साल, उसकी बादशाही का टाइम 20 साल। उसके बरक्स बुजुर्ग यूसुफ के बारे में सुनो। यूसुफ परहेजगार था। यूसुफ, एक मैं परहेजगार के बारे दसना तो एक जिन्हें परहेजगारी नहीं की थी। यूसुफ परहेजगार था। औरतां तो परहेज करता सी कि नहीं, दौलत तो परहेज करता ही कि नहीं। उसकी उम्र, उसकी बादशाही 70 साल की थी। शमसून ने 20 साल बादशाही की, क्योंकि परहेजगार आदमी नहीं था। लोगों पर बादशाहियां बड़ी जल्द आती हैं, पर एवं ही फिर गली में ला याद कराउंदा है, भाई कदी वक्त सी चिट्टा सूट नहीं थले थले, चिट्टे सूट तो थले सूट नहीं पाता, कदी माया ढिली नहीं। एवं 5-7 साल च बादशाही। परहेजगार नहीं है, परहेजगार। शमसून परहेजगार नहीं था, बादशाही सिर्फ 20 साल। यूसुफ परहेजगार आदमी था, उसकी बादशाही का टाइम 70 साल। कितने साल? 70 साल। आगे सुनो, इसहाक परहेजगार आदमी था। इसहाक क्या था? परहेजगार आदमी था। 20 साल उसने अपनी बीवी के लिए दुआ की कि मुझे औलाद मिल जाए, और 20 साल उसने वेट किया कि खुदा मुझे औलाद देगा। खुदा का बंदा होकर 20 साल अपनी बीवी के लिए दुआ करता रहा कि खुदावंद मुझे औलाद दे। 20 साल के बाद खुदा ने उसको औलाद दी। इसहाक परहेजगार था। बादशाही का टाइम 140 साल। परहेजगार बंदा है, बादशाही का टाइम। दाऊद बादशाह परहेजगार है कि नहीं? बादशाही का टाइम सिर्फ 40 साल। ध्यान से सुनो, मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की है। दाऊद बादशाह, किंग, बादशाही का टाइम सिर्फ 40 साल, परहेजगार नहीं था। सुलेमान की बादशाही का टाइम सिर्फ 40 साल, परहेजगार नहीं था। उसके बरक्स बुजुर्ग इब्राहिम की बादशाही 100 साल। लोगों, आपको अपनी जिंदगी की कभी समझ नहीं आती, हमें कभी भी समझ नहीं आती कि हमारी बादशाहियां छोटी क्यों होती हैं, हमारी जिंदगी की बरकतें कम क्यों होती हैं, हमारी जिंदगियां दिन ब दिन कम क्यों होती जाती हैं, क्योंकि हम लोग परहेजगार नहीं। हम लोग, अगर खुदा हमें पैसा दे दे तो उसमें हम परहेजगार हैं जी। अगर खुदा हमें पैसा दे दे तो खुदा ने जब दौलत दी तो उनसे कहा 10वें हिस्से से क्या करना? 10वें हिस्से तो की करे हो ਹੁੰਦਾ है। तुसी अदनों वेल अज ताणी रब कलीसियां नूं परहेज दसदा है। खुदा ने इंसान को दौलत दी और उससे कहा 10वें हिस्से से क्या करना? इसको अवॉइड करना, नजरअंदाज करना, एदा इस्तेमाल ना करिए, तेरा है ही नहीं, ये तेरा बादशाही छोटी हो जाएगी। तुसी आजमा के वेलो। मैंने बाइबल में से आपको मिसालें दी हैं। बुजुर्ग यकूब की बादशाही सिर्फ 17 साल थी, वो भी पुत्र दी बादशाही चे 130 साल बेचारा रुलदा ही रहा, परहेजगार नहीं था। बुजुर्ग यकूब की बात कर रहा हूं, वो परहेजगार नहीं था। 130 साल दुख में जिंदगी गुजारी। जब फिरौन बादशाह के सामने हाजिर हुआ, उसने हाजिर हुआ, फिरौन ने पूछा, ऐ यकूब तेरी मुसाफरत का जमाना क्या है? उसने कहा 130 साल, ये लेकिन दुख से भरे हुए हैं। जब यूसुफ ने बादशाही बनाई, उसके अंदर वो सिर्फ 17 साल, सिर्फ 17 साल। वजह परहेजगार। परहेजगार इंसान परहेजगार होता क्यों नहीं? आप मुझे ये बताएं, क्यों नहीं होता परहेजगार? एक औरत, ध्यान से सुनो, एक औरत एक मर्द को अपना शौहर कहती है, एक मर्द को अपना भाई भी कहती है, एक मर्द को अपना चाचू भी, मामू भी, दादू भी, नानू भी कहती है,
एक मर्द को अपना बाप भी कहती है। लेकिन सारे जहान के अंदर सारी दुनिया मरती जा रही है, मरती जा रही है, पर मामू, पापा, चाचा, ताया, शौहर, बीवी को पैदा करने वाला आज भी जिंदा है। आज भी कलीसिया इन रिश्तों में भी परहेजगार नहीं है, रिश्तों में भी परहेजगार नहीं। एक मर्द एक बीवी को क्या कहता है? अपनी। एक औरत को क्या कहता है? अपनी बीवी। एक औरत को अपनी बीवी कहता है, एक औरत को अपनी मां कहता है, एक औरत को अपनी बहन कहता है, एक औरत को अपनी दादी कहता है, एक औरत को अपनी नानी, एक को चाची, एक को मामी कहता है। पर एक बात याद रखो, आप इन चीजों के अंदर परहेज करो, इन रिश्तों को पैदा करने वाला हमेशा जिंदा है, वो हमेशा जिंदा है। अगर खुदा खाने में आपको परहेज करने को बोलता है, किसमें? खाने। दुनिया में आप मुझे बताएं, साथ वाले इसके खास बात सुने, खाना दुनिया में खत्म हुआ है कभी? हुआ है कभी? बंदा ही मुक्का जदों भी मुक्का है। खाना खत्म हुआ दुनिया में? रोटियां मुक्कियां ने जगते जदों मुक्का है। इंसान ही मर रहा है, खाना कभी भी नहीं मरा। फिर भी रोटियां तो लड़ाई है कि नहीं? है कि नहीं? कलीसिया परहेजगार नहीं है। कलीसिया परहेजगारी के साथ, वो कहता है परहेजगारी के साथ, अपनी बरकत के अंदर परहेजगार नहीं है लोग, अपनी ताकत के अंदर परहेजगार नहीं है लोग। कलीसिया परहेजगार होती है फिर बरकत पाती है। कलीसिया फास्टिंग नहीं करेगी कभी नहीं बनेगी। कलीसिया परहेजगार नहीं होगी कभी तरक्की नहीं करेगी। दुनिया के अंदर कभी भी खाने खत्म नहीं हुए। क्या हुए हैं? खाना खत्म हुआ है जदों मुक्का है, क्योंकि खानों को पैदा करने वाला हमेशा जिंदा है। खानों को खाने वाले मर गए हैं, खाने वाले मर गए, लेकिन पैदा करने वाला हमेशा जिंदा है। वजह कलीसिया परहेजगार नहीं, वो परहेज नहीं करते। इसमें हमारी जात के अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम अपने कामों में, अपनी प्रेयर में परहेजगार नहीं, अपनी फास्टिंग के अंदर परहेजगार नहीं। आप अगर परहेजगार नहीं करें, परहेजगारी नहीं लाएंगे, आपकी बादशाही दिन ब दिन छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। मैंने बाइबल में आपको सूरमों के बारे में बताया। सुलेमान ने सिर्फ 40 साल बादशाही की। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी बादशाही में परहेजगार नहीं था। खुदा ने उससे कहा, उसने कितनी बीवियां की थी? हैं सुलेमान ने कितनी? 1700 बीवियां, 300 हुरमे, सारियां जदों 1000 बीवियां फिर दी होगी ते सारी बीवियां तेरी हैं। पर उसे कहा गैर कौमों की औरतों से ब्याह। उसी परहेजगारी के अंदर उसने पाप किया। दाऊद ने भी उसी परहेजगारी के अंदर पाप किया। बंदा कह के भी जाए ना, बेगम हदिये दे पैसे नहीं, वो उन्हां दी कंबल ले लेंदी है। अच्छा मैंने तुहां दसिया ही नहीं, कितनों समझ आ रही? बीवी कवे भी ना ए हदिये दे पैसे ने, वो दुकान वाले परहेजगार नहीं है कलीसिया। अगर आप परहेजगार नहीं होंगे, आपकी बादशाही छोटी हो जाएगी। दिन ब दिन चर्च परहेजगार नहीं होता, इसलिए चर्च पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं। 4 दिन चांदनी, फिर वही अंधेरी। पर तुसी एक गल याद रखो, सियाल कोटी बनेगी एक दिन, यसू दी वोटी एक दिन बनना है। समझ आ रही? आपको बनना है और आप देखेंगे खुदा का जलाल। हम इस भेद पर काम नहीं करते कि आदम से लेकर आज तक खुदा इंसान को परहेजगारी सिखाता है कि आपको परहेजगार होना है। अगर आप दौलतमंद हो जाओ तो खुदा आपसे कहेगा दौलत में परहेज करना। अगर आपके पास औलाद हो तो खुदा कहता है औलाद में परहेजगार होना। अगर आपके पास अथॉरिटी आ जाए, ताकत आ जाए, आप जमीन पर जितने भी, कोई एक बंदा नहीं, मैं एक बंदे का नहीं, पूरी बाइबल में अब आपकी नजर से पूरे प्रीस्ट गुजर रहे हैं एक पल में कि बाइबल में कौन कौन सा बंदा परहेजगार था। जो बंदा परहेजगार था उसकी बादशाही लंबी थी, उसकी जिंदगी लंबी हुई, क्योंकि वो परहेजगार लोग थे। हम ना खाने में परहेजगार हैं और ना पहनने में, ना सोने में। जो सोता है वो सोता ही रहता है, और जो खाता है वो खाता ही, और जो पीता है वो पीता ही, और जो रोंदा है वो रोंदा ही रहता है। तो जेड़ा पाउंदा है वो कलीसिया परहेजगार हो जाए। कलीसिया परहेजगारी से जिंदगी है। किससे जिंदगी है? बाइबल। बड़ी बड़ी कंपनी आज बंद हो गई हैं। मैंने आप उन कंपनियों का मैं नाम भी नहीं लूंगा और उनके मालिकों के नाम भी नहीं लूंगा।
बड़ी बड़ी कंपनियां बंद पड़ी हैं, वजह उनके मालिक परहेजगार नहीं थे, बदकारी किया करते थे। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद है, भाई जानते हैं, मालिक परहेजगार नहीं थे। परहेजगार ना होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां बंद है। परहेजगार ना होने की वजह से फास्टिंग में परहेजगार होना, खानों में परहेजगार होना, प्रेयर के अंदर, प्रेयर में, फास्टिंग में, कलीसिया के अंदर परहेजगारी ना होने की वजह से जिंदगियां छोटी, बादशाहियों का टाइम दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। बाइबल में मैं आपको कितने लोगों की मिसाल दूं। बुजुर्ग नूह परहेजगार आदमी था, लास्ट टाइम में जाकर गलती की। बादशाही का टाइम 400 साल। कितने साल? हमारी बादशाही कितने टाइम के लिए आती है? साढ़े को चंगी नौकरी आ गई तो बस फिर गए आपा, फिर एवं 6 साल ही बादशाही ने कढ़ने ने। किन्ने वो फिर कितने मिलता, कितने वे तेन की होया, तू तेन तो बड़ी चंग ना, मैनू काट ही छड़िया ना, मैनू। परहेजगार आप नहीं होंगे, आपकी बादशाही छोटी होती जाएगी, आपकी बादशाही। मैंने कहा बड़ी बड़ी कंपनियां मैंने लोगों की देखी हैं बंद है, बड़ी बड़ी उम्र पाई लोगों ने परहेजगार होने की वजह से। इसहाक ने बड़ी लंबी उम्र, बड़ी बादशाही, ये उनकी बादशाही का टाइम है, कुल उम्र नहीं मैं बता रहा। इसहाक ने 140 साल बादशाही की, टोटल उम्र 180 साल थी, क्योंकि वो परहेजगार आदमी था। हमारी लाइफ में यह है कि हम परहेजगार नहीं। एक बंदा जमीन पर उतरा, उसका नाम हम बाद में जिक्र करेंगे। उसने उतरते ही दुनिया की दौलत से परहेज किया, दुनिया की, उसने दुनिया के रिश्तों से परहेज किया, उसने औरत से परहेज किया, उसने मर्दों से परहेज किया, उसने कायनात के खानों से परहेज किया। सबसे छोटी बादशाह 3.5 साल, सबसे 3.5 साल उसने बादशाही की। सारे परहेजगार, उसने सारी जिंदगी परहेजगारी में गुजारी। औरत से भी परहेज, रोटी से भी, खाने से भी, घर से भी, बिस्तर से भी, बेड से भी, सोने से, सारी दुनिया की चीजों से उसने परहेज किया। अच्छे घर का भी लालच नहीं किया और पहाड़ पर जिंदगी गुजारी। खुदा ने उसको सारा इख्तियार बख्शा और उसका नाम यीशु मसीह था। उसका नाम, सबसे छोटी बादशाही में सारी दुनिया की चीजों से वो परहेज करता था। कोई एक चीज मुझे बता दे जो पहाड़ पर वो लेकर गया, दुनिया का सराहना भी नहीं हिलाया गया, दुनिया का। सुने, एलिया नाले पर सोता था। कहां? मैनू जो मैं जियां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚ ਪਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਚ ਪਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਟੈਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਕਾਰਪੇਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਲ ਪੱਖੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, गर्मी नहीं उससे बस होगी। पंखों के अंदर बैठकर भी हम खुश नहीं है, पर एलिया नाले ते सौ के भी खुश ही। एलिया नाले तो पानी पींदा ही किवें? बुक्कां दे नाल। किंज? आखिर बाइबल में लिखा है नाला सूख गया, नाला, और वो खुश थे क्योंकि वो सारी दुनिया से परहेज करते थे, बुक्कां ना पानी पींदे सी ते खुश रहिंदे सी। ਆਪਾਂ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੈਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ, ਵੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਬਸ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 10 ਦਿਲ नहीं लगता। सुनो, जीसस क्राइस्ट पहाड़ पर सोकर भी खुश थे, पहाड़ पर सोकर भी। हम बेड पर सोकर भी खुश नहीं है, हम बेड पर भी सोकर। अपनी अथॉरिटी में परहेज करना, मैंने जो कुछ सीखा है अपनी जिंदगी में, अपने इख्तियार से परहेज करना। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए और उसने कहा अगर मैं अपने बाप से कहूं तो वो 12 तुम्मन फरिश्ते भेजे। कितने तुम्मन? एक तुम्मन में कितने फरिश्ते होते हैं पादरी साहब? कुछ कहते हैं एक तुम्मन में 12,000। 12 को 12 से जरब दोगे तो 1,44,000 फरिश्ते। कितने? 1,44,000 फरिश्ते यहां पर आए, और अगर कोई मुझे हाथ लगाएगा तो वो उसे मारेंगे। और इख्तियार था, पर अपने इख्तियार को उसने इस्तेमाल नहीं किया। इतने जिन्होंने एल्डर बना दो कुर्सियां भी ठुड्डे मार जाता, तो पता नहीं मैं कौन हूं। अपनी अथॉरिटी में परहेजगार था वो। आपको समझ आ रही? उसने कहा मैं
एक जगह पर शागिर्दों को खुदावंद ने कहा जाओ उस इलाके के अंदर फसा तैयार करो, और इलाके के लोगों ने उनको मारा और वहां से निकाल दिया। इलाके के लोगों ने उनको मारा और वहां से शागिर्दों के पास आए, यीशु के पास आए और आकर कहते हैं एलिया वांगू प्रेयर कर, आसमान तो अग आए। कितों आए? अगर जीसस क्राइस्ट कहते तो आग आ सकती थी या नहीं? अथॉरिटी में वो परहेजगार था, उसने कभी अपनी अथॉरिटी को यूज नहीं किया, बल्कि उसने खिदमत को अपनी जिम्मेदारी समझा, खिदमत को अपनी जिम्मेदारी समझा। आज रात वो उठकर अपने शागिर्दों के पैर धोता है, बल्कि चेयर पर बैठकर उनको ये नहीं कहता जाए पत्तू पानी ले आकर थोड़े पैर धो। वो अपनी अथॉरिटी में परहेजगार आदमी था, उसको पता था मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी अथॉरिटी क्या है, मेरा इख्तियार क्या है। वो अपने इख्तियार को भी कभी इस्तेमाल नहीं करता। अपनी अथॉरिटी में परहेजगार होना, अपनी ब्लेसिंग के अंदर परहेजगार होना। आप दौलतमंद हो जाओ, पर कभी अपनी दौलत की तरफ ध्यान नहीं देना, उसको इग्नोर करना, फिर आपकी बादशाही लॉन्ग टाइम चलेगी, फिर आपकी बादशाही लॉन्ग टाइम चलेगी। हमारी बादशाहियां लॉन्ग टाइम नहीं चलती, हमारी सदारतें लॉन्ग टाइम नहीं चलती, हमारी हुकूमत लॉन्ग टाइम नहीं चलती, क्योंकि हम परहेजगार लोग नहीं, हम परहेजगार लोग नहीं। साडा मुंडा बाहर भी जाके सेट नहीं होता, बाहर भी परहेजगार नहीं। अपनी ब्लेसिंग के अंदर परहेजगार होना, अपनी अथॉरिटी के अंदर परहेजगार होना। बाइबल आप जहां कहीं से भी उठाओगे, खुदा के पास जो बंदा भी आया वो परहेजगार बन गया, जो बंदा भी खुदा के पास आया वो परहेजगार बन गया। और उसकी जिंदगी की परहेजगारी का राज यह है कि उसकी बादशाही लॉन्ग टाइम चली है, लॉन्ग टाइम। हमारी बादशाही लॉन्ग टाइम इसलिए नहीं चलती क्योंकि हम अपनी जिंदगी में परहेजगार नहीं। वो रुपया पैसा जो आपके घर में आता है उसमें हम परहेजगार नहीं, जो बच्चे हमारे पास हैं हम उनमें परहेजगार नहीं, जो अथॉरिटी जो ताकत हमारे पास है हम उनमें बादशाही आएगी, बादशाही आपको मिलेगी, दौलत आपको मिलेगी, पर लॉन्ग टाइम चलेगी नहीं, ज्यादा देर चलेगी नहीं। आप पास्टर बनोगे पर ज्यादा देर चर्च नहीं चलेगा, आप लीडर बनोगे पर ज्यादा देर नहीं चलोगे, आप खिदमत करोगे पर ज्यादा देर नहीं चलोगे, आप बहुत टाइम तक खिदमत को कामयाब नहीं कर सकते, बहुत टाइम तक आप आगे नहीं चल सकते, क्योंकि आप परहेजगार नहीं। वो लोग जो परहेजगारी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारते, उनकी बादशाहियां दिन ब दिन छोटी होती जाएंगी, दिन ब दिन छोटी होती जाएंगी, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनकी बादशाहियां छोटी हैं और वो परहेजगार नहीं। आपको मैंने बाइबल में से कितनी मिसालें दी हैं, कितनी मिसालें, और जिन जिन की बादशाहियां छोटी हुई हैं उनमें शमसून है, दाऊद है, सुलेमान है, और भी बादशाह बहुत सारे हैं जिन्होंने सिर्फ 2 साल बादशाही की, 1 साल बादशाही की, 5 साल बादशाही की, लेकिन जो परहेजगार हुए लॉन्ग टाइम लोग चले। आप जब अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर परहेजगार बनेंगे, उस टाइम आपकी बादशाही लॉन्ग टाइम चलेगी। कितनों को समझ आई मेरी बात? खाने वाले मर गए, पीने वाले मर गए, बांटने वाले मर गए, देने वाले मर गए, बनाने वाले मर गए, पर पैदा करने वाला हमेशा जिंदा है, पैदा करने वाला हमेशा जिंदा है। आप ध्यान रखो, आप लुट जाओ, आप गरीब हो जाओ, ताडे पल्ले ना रवे तेला, पर तुसी एक गल याद रखो, देने वाला जिंदा है। आपको मारने वाले मर जाएंगे, आपको लूटने वाले मर जाएंगे, आपको धोखा देने वाले मर जाएंगे, पर आपको जिंदा करने वाला कभी नहीं मरेगा, वो आज भी जिंदा है। वो मैंने जिंदगी के इन फलसफों से यह सीखा है। अगर आप परहेजगार हो, आपकी बादशाही वापस आएगी, आपकी बादशाही, आपकी ब्लेसिंग वापस आएगी। शैतान आपको मारे, आपके बच्चों को मारे, आपकी लाइफ को मारे, पर आपको परहेजगार होना है, फिर बादशाहियां बड़ी होती हैं, फिर बादशाहियां बड़ी होती हैं। मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे कहा कि चर्च बनाने बंद कर दो, अब हमें मैदानों में जाना है खुदा का काम करने के लिए। कहां पर जाना है? उसमें करना क्या है? बस आपको परहेजगार होना है। आप परहेजगार होते जाइए, होते जाइए, होते जाइए, देखें खुदा बादशाहियां बनाता है। यहां पर जितने भी लोग बैठे, एक भी बंदा इश्तिहार पर नहीं बुलाया गया, कोई इश्तिहार नहीं लगाया गया, कोई इसकी मुनादी नहीं की गई। आप सब यहां पर खुदा की इबादत करने के लिए आ चुके हैं। मुझे आज भी याद है, अजमल इन्ने जी इकट्ठे करने लिए की करीदा हुंदा सी, हैं माइक पढ़ो, की करदे हुंदे हो? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਈਦੇ ਸਨ ਹਾਂ। ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਈਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। आप समझ रहे हैं? आप परहेजगार हो जाए कलीसिया, खुदावंद देखें आपको बढ़ाएगा।
खुदा इस मुल्क में आपको बादशाही दे सकता है, आप परहेजगार हो जाए। दाऊद की बादशाही खराब इसलिए हुई थी क्योंकि वो परहेजगार नहीं था, वो अपने किंगडम के अंदर परहेजगार नहीं था। आपका घर आपका किंगडम है, आपकी बादशाही आपका घराना है। अगर आप अपने घर के अंदर परहेजगार नहीं तो आपका घर एक दिन उजड़ेगा, आपका किंगडम एक दिन बर्बाद हो जाएगा। बागे अदन में परहेजगारी बाबेरा की थी, सारे फ्रूट तेरे ने, पर एक फ्रूट ओदे तो परहेज करना है। आपके पास 1 करोड़ रुपया, कितने ओदे चो 1 करोड़ का 10वां हिस्सा कितना बनता है? 10 लाख। 10 लाख तेरा नहीं, ओदे तो परहेज करना है। इन्ना पहला चौके हुई ला दें। बादशाही लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी, थोड़ा टाइम चलेगी, खत्म हो जाएगी। एक नहीं, एक बाइबल में मिसाल नहीं है। हननिया और सफीरा रह नहीं दो, इन्हों का जिक्र ही ना करो, मुझे डर आई जाता। लॉन्ग टाइम अपनी ब्लेसिंग में नजरअंदाज रहना, नजरअंदाज करना, अपनी ताकत को नजरअंदाज करना, अपने इख्तियार को नजरअंदाज करना, अपने हुस्न को नजरअंदाज करना। कर दूं बात कि नहीं? ज्यादा देर हुस्न नहीं चलता। क्यों? वो जेडे सोने ने भी मली आते ने मुंह, मैं ना तुसी क्यों मारदे, तुहानू क्यों है? तुसी ते अगे सिर मुंह मत्थे वाले मलना ते साडे वर्गे नहीं चाहिए। ज्यादा देर आपका हुस्न नहीं चलेगा। बाइबल पढ़ो, 100 साल तक सारा का हुस्न कामयाब रहा क्योंकि सारा परहेजगार थी। हालेलुया। 100 साल तक उसका हुस्न। 4.5 दिन की चांदनी फिर है तेरे मुंह की होया, कश नहीं, बस बस आप गर्मी च काम करना। अपनी जवानी में लोग परहेजगार नहीं। बाइबल पढ़ो, वहां पर लिखा, देखो मैं थल्ले आ रहा आस्ता आस्ता। अपनी जवानी में परहेजगार होना, अपनी जान है बट्टे चुक चुक लोगों में आवे, सांभ के रखो। आप अपनी जवानी में परहेजगार हो, लॉन्ग टाइम जवानी चलेगी। 30 साल हो जाए बस 2 बाल चिट्टे भरावा, हम बूढ़े हो गए हाँ ना। जवानी च परहेजगार हो, लॉन्ग टाइम जवानी चलेगी। ए जेडे अजकल के साडे बच्चे ने है ने परहेजगार है ने, तुहानू क्यों नहीं पता? मैंने फिर कहा, हुस्न में परहेजगार और लॉन्ग टाइम आपका हुस्न चलेगा। तानू सहारा नहीं देना पड़ेगा इनू। आप अपनी जवानी में परहेजगार हो गए, लॉन्ग टाइम आपकी जवानी चलेगी। लॉन्ग टाइम। मुझे एक बंदा कहता भाई साहब तेरे भी 2 बच्चे हो गए ने, बुढ़े हो गए। मैं आप अगले भी 20 साल बुढ़िया नहीं होना। बड़े वसूख ना गालां दे तुसीं। मैं ठीक कह रहा, आप अगले भी 20 साल बुढ़िया नहीं होना। आप परहेजगार नहीं, आप परहेजगार नहीं है। खुदावंद ने कहा 7वें दिन का परहेज करना। आज मैंने एक बंदे को फोन किया, मैंने कहा यार इबादत पर आना, छुट्टी नहीं मिली मैनू। तो मैं क्या क्यों है ना, सुमार दी कर लांगा मैं क्या अज तेरे लिए यसू मर गया, चलो भी तो है लेकिन छुट्टी। मैं क्या सुमार नूं फिर करांगा, ईस्टर इकट्ठा नाल ही होइएगा। दसो इस कौम नूं कौन समझाएगा? लभे आप परहेजगार नहीं है, अपनी पावर में परहेजगार हो। जो ताकत खुदावन ने आपको दी उसमें परहेजगारी करो। आपको खुदावन ने हुस्न दिया है, और साडे वाले जिहड़ा बहुता सोना बहिंदा ही नहीं कि बहिंदा ओदा ना फिर सोने, वो फिर सोना टिकेगा नहीं। कर ए थोड़ा टाइम है फिर रंग काला अच्छा फिटे मुंह पे। ओ सॉरी गलत हो गया। परहेजगार नहीं है हम। आपको खुदावन एक बादशाही देता है, किंगडम देता है। इस पूरी बाइबल का फलसफा इसी के अंदर है, नया अहदनामा भी इसी के अंदर है। जीसस क्राइस्ट ने परहेजगारी की, पूरी जिंदगी परहेजगारी के साथ गुजारी। हम मर गए और हम जिंदा नहीं, उसने थोड़ा टाइम सारी दुनिया से परहेज करके बाप को खुश किया, और बाप ने मरने के बाद फिर उसे जिंदा किया, और जिंदा करने के बाद फिर उसकी बादशाही जमीन पर कायम कर दी। लॉन्ग टाइम बादशाही चलेगी, कभी बादशाही खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसने परहेजगार था, क्योंकि वो परहेजगार था। मरने के बाद भी उसकी बादशाही जिंदा है। आप मरने के बाद किसी के लिए चावल बनाएंगे, किसी के लिए रोटियां बनाएंगे, पर क्या वो खाने आएंगे? आप बाइबल पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। जीसस क्राइस्ट मर गए और जिंदा हुए, और जिंदा होने के बाद उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा मुझे कुछ खाने को दो, मैं आपको दिखाता हूं। ये वो है जिसकी बादशाही मर जाने के बाद भी जमीन पर अब तक कायम रहेगी, क्योंकि वो परहेजगार था। एक यीशु के परहेजगार होने से कायनात में इतनी जानें बचाई जा रही हैं। तो जे आप सारे हो गए थे करनी फास्टिंग कि नहीं?
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ बचावांगे। ध्यान से सुने, एक जीसस ने इतनी परहेजगारी की कि कायनात के अंदर आज तक उसकी ताकत से सब ले रहे हैं। और अगर आप सारे ही परहेजगार हो जाएंगे तो आप मुझे बताएं आपकी बादशाही कितनी बड़ी होगी, कितना बड़ा किंगडम आप बनाएंगे। आप लाखों लोगों के दरमियान खिदमत करेंगे जब आप परहेजगार होंगे। कलीसिया के अंदर यही रफड़ है, कलीसिया परहेजगार में। मैं जब किसी से कहता हूं ना रोजा रखो, भाई साहब वो रख तिलां पर खिच्चां पैंदियां किथे की पैंदियां ने, ते जेड़ियां खिच्चां सानू शैतान ने लाइयां ने ना, खिच्चां लाइयां ने। शैतान उस बंदे के पास, दाऊद के पास गया, उसको पता था ये परहेजगार नहीं। सुलेमान के पास गया, उसको पता था परहेजगार नहीं। समसून के पास गया, उसको पता था परहेजगार नहीं। जीसस दे कोल इक्को बारी गया, परत नहीं गया, उन्हें पता ये बंदा ही बड़ा परहेजगार है, इनू नहीं छेड़ना, इनू सानू रोज छेड़ना आ जाता। मैं कलीसिया अक्सर भाई साहब राती डर मैं तुहाडे को कदी कोई फरिश्ता नहीं हुंदा तुहानू मिलन, तुहानू जदों वेखो जिन बदरूमा, कदी किसी ने गवाही नहीं दी पादरी साहब मेरे घर में कोई फरिश्ता आया। कोई है तो मैनू दसो, कोई एक है तो दसो फरिश्ते वाला। जिन्ना वाले किन्ने ने? सर हम परहेजगार नहीं हैं, हम परहेजगार लोगों में शुमार नहीं होते। जितना ज्यादा परहेजगार होगे, आप चाहते हैं आपके बच्चे बादशाही करें, आप चाहते हैं आप जमीनों के वारिस बने, आप चाहते हैं कारों के, कितना दे, कितने लोग कार लेना चाहते हैं? सारे कारां लेना दे। बंदा, लोगों को मैंने देखा उनकी बादशाहियां बनती जरूर हैं, कारें गाड़ियां उनके पास बाहर खड़ी होती हैं, लोग देखते हैं, लेकिन उनकी बादशाहियां उजड़ जाती हैं। परहेजगार नहीं, अपनी अथॉरिटी में परहेजगार नहीं, अपने पैसे में परहेजगार नहीं, अपने हुस्न में परहेजगार नहीं, अपनी अथॉरिटी में, अपनी जवानी में परहेजगार नहीं है। इसलिए जवानियां भी आउंदियां ते निकल जांदियां, हुस्न आता है, और क्योंकि परहेजगार। बाइबल आप जहां से भी उठाओगे, जहां से भी पढ़ोगे, आपको लोग परहेजगारी करते नजर आएंगे। जिन्होंने रास्तबाजी किया, रास्तबाजी असल में परहेजगारी है। रास्तबाज होना ही परहेजगारी है। अपनी ब्लेसिंग में, अपनी पावर में, अपनी अथॉरिटी में, जीसस क्राइस्ट अपनी अथॉरिटी में परहेजगार और दुनिया की तमाम ख्वाहिशात में परहेजगार था। खुदा ने उसे कायनात का बादशाह बना दिया। आप जितने परहेजगार होते जाओगे, आपकी उतनी बड़ी बादशाही होती जाएगी। पहले आप अपने घर पर बादशाह बनोगे, फिर आप अपने मोहल्ले में, फिर इलाके में, फिर शहर में, फिर मुल्क में, फिर खुदा दुनिया के तूलो अर्ज में आपको घुमाएगा। आप बहुत बड़े परहेजगार बन चुके हो। जितना बंदा छोटा परहेजगार होगा, उसकी बादशाही उतनी छोटी होगी, उतना ही छोटा। जिन्हों कोई भी नहीं ना पूछता, ओदा ना रखा, जिन्हों कोई ना पूछे उन्होंने रब वेखे, वो एक्चुअल में है ही नहीं, वो असल में है ही नहीं है। आपको परहेजगार होना, कितनों को समझ आइए? समसून की बादशाही कितना टाइम थी? दाऊद की, सुलेमान की, इजहाक की बादशाही 140 साल, यूसुफ की बादशाही 70 साल, इब्राहिम की बादशाही 100 साल। क्यों? परहेजगार थे, बादशाहियां लंबी थी। आज भी क्रिश्चियन कभी भी इस बात को नहीं समझते। आपको खुदावंद बड़ी बड़ी कौमों के लिए, बड़े बड़े कबीलों के लिए इस्तेमाल करेगा, पर आप परहेजगार हो जाओ। आप कितने लोगों को समझ आइए? साथ वाले से पूछे, आ गई है? परहेज करना है कि नहीं? वो कहता है अपना टाइम, अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ और परहेजगारी के साथ गुजारो, परहेजगारी के साथ गुजारो। इन चीजों को अवॉइड करो, नजरअंदाज करो, इनको साइड पे रखो और फिर चलो। लोग अपनी दौलत में भी परहेजगार नहीं है, और आज भी उनकी दौलत उनके लिए तमाशा बन जाएगी, उनका घर उनके लिए तमाशा बन जाएगा। एक देग जेड़ी खुदा के लिए मानी होती है, किन्ने साल च देई दी? मन के किन्ने साल लग जाते दे दिया? लो, एक आंदा भाई साहब तकरीबन 4 साल लगते हैं एक देख देंदे। आपने जो मान लिया है उसमें परहेजगार रहना, जो मान लिया है उसमें आपको नजरअंदाज करना है।
इवॉइड करना है ताकि आप बरकत पाएं, आप आगे बढ़ते जाएं। फिर देखें खुदावंद आपकी जिंदगी में किस तरह से काम करेगा। ये जो टेस्टमनी है, ये खुद ही प्रेयर कर रहे हैं, खुद ही दुआएं कर रहे हैं, खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं। खुदा खुद ही इनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, क्योंकि लोग अपनी ब्लेसिंग के अंदर प्रेज गा रहे हैं, लोग अपनी ताकत के अंदर प्रेज गा रहे हैं, लोग अपने घरों के अंदर प्रेज गा रहे हैं, लोग अपने चर्च के अंदर प्रेज गा रहे हैं। आपकी जो खिदमत नहीं, उसमें आपने परहेज करना है कि ये हिस्सा मेरा है ही नहीं। कल भी भाई से बात हो रही थी और वो मुझे बता रहे थे, वो बैठे हैं भाई साहब, वो कह रहे थे मुझे, कुछ लोगों ने कहा तो पास्टर बना रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मेरी ये खिदमत नहीं, मैं नहीं पास्टर बन सकता। जो हिस्सा आपका नहीं उसको अवॉइड करना, उसको नजरअंदाज करना। कार च नूह कादे वास्ते आंदी है? नूह बनन के सस बनन? सस तो की करना है, सस तो की करना है। ते जे नूह सस बन जाए ते सर जी जिदा जेड़ा हक है उन्होंने उत्थे ही खलोण दियो, जिदा जेड़ा हक है उन्होंने उत्थे खलोण दियो। जिंदगी कभी भी नहीं, कभी भी नाकाम नहीं होगी, कभी भी। खुदा जमीन पर आज भी इंसाफ करता है, वो देखता है। उसने अपने बेटे को भेजा, जमीन पर रोल मॉडल बनाया और उसने कहा देखे कायनात का हर एक प्रीस्ट जिसने खिदमत करनी है वो भी उसको देखे, उसको फॉलो करे कि उसने जिंदगी कैसे गुजारी है, उसने जिंदगी। एलिया के बारे में आपको मैं बताता हूं। एलिया एक बेवा के घर में गया और अपने लिए एक टुकड़ा मांगता है उससे, उससे कहता है मुझे एक क्या दे, एक टुकड़ा रोटी का मुझे दे। और इख्तियार उसके पास ऐसा है कि बेवा का घर रोटियों से भर दिया। अपने इख्तियार में इतना परहेजगार एलिया एक टुकड़ा रोटी का किसी से मांगता है, लेकिन बेवा का घर उसने रोटियों से भर दिया। इथे जिन्हें पकाई होंगी वो आंदा लै हुण आही पकाई दी हुण खाई भी ना। मुंडिया पूछ लो, पिछले 2-3 महीनों तो साडे चर्च 16-16 किलो मठियाई आती है, 18-18 किलो। तो मुंडिया मैं पूछा मठियाई, सर जी मुक गई है। मैं साडे वास्ते को नहीं बचड़ी। आप समझ रही? आपके पास जो है उसमें उस पर आपने ताकत नहीं जमानी अपनी, आपकी बादशाही कभी नहीं जाएगी। जीसस क्राइस्ट ने जंगल में लोगों को क्या खिलाया? ब्लेसिंग इतनी है, पावर इतनी है कि आसमान से रोटियां उतर सकती हैं, ला सकते हैं, पर अपने लिए उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मेरे लिए, यानी अपनी पावर में, अपनी ताकत में, अपनी ब्लेसिंग में आपको परहेज करना है। क्या करना है? आप इस फार्मूले को अपने घर ले जाओ और इसको आजमाओ, इस पर काम करो, वर्क करो, फिर देखें आपके साथ खुदा क्या करता, फिर देखें खुदा क्या करता। पिछले 4 माह पहले आप ये देखो, पिछले 4 माह पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें लोगों की तादाद 400 से 500 थी। आज आप फिर देखें कोई इश्तिहार नहीं और आप 700-800 लोग यहां पर बैठे। आप काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगले साल जब आप यहां पर आएंगे, इससे डबल क्राउड आप देखोगे, यहां पर डबल क्राउड देखोगे। आप देखेंगे खुदा की बादशाही को यहां पर। मैं आप बड़े अपने शागिर्दां नूं जेड़े काम करदे उन्हां नूं समझांदे, आपां उन्हां नूं बड़ा कुछ सिखाया, बड़ा कुछ समझाया। सबर करो, बादशाही दा टाइम आएगा, बादशाही दा टाइम आएगा। खुदावंद 33.5 साल सबर करके बादशाहों से धक्के खाए। किनसे धक्के खाए? यीशु मसीह ने सबर करके बादशाहों से धक्के खाए, अपने भाइयों से धक्के खाए, अपने घराने से, शहर के आलमों से धक्के खाए। जेड़ा टगेदा नहीं उन्हें भी धक्के मारे, पर उन्होंने पता ही अपनी बादशाही का टाइम आऊगा। अपनी बादशाही का जदों लोकी तुहानू थुकण, जदों लोकी तुहानू इग्नोर करन, उदों चुप कर जाना, उदों चुप कर जाना। ये गल याद रखो, बादशाही का टाइम आंदा है, बादशाही का टाइम। उसने देखा कि हर मुआशरा मुझे इग्नोर कर रहा है, सूली पर लटका दिया। सूली पर लटक कर भी उसने कोई बात नहीं की, क्योंकि उसको पता है मैं मरूंगा, मरने के बाद इस पूरे जहान की बादशाही अपने पास। इन्हां दा की करना, आप मरन तो बाद भी बादशाह बनांगे। आपके अंदर खौफ है और खौफ आपको मार देता है। ए तो 2 लाख रह गया ही, ए मुक जाएगा तो फिर की करेगा। इस प्रोग्राम एक टेस्टमनी मैं अपनी शेयर करता हूं।
1 लाख रुपया था, वो कहते फंस गया, हाल भी निकलिया कि नहीं? नहीं निकलिया। वही था मेरे पास, और मैं मुंडिया नूं कहा कि ऐतका ना देगा च मुर्गी नहीं कीमा पाओ, की कीमे वाले पुलाव पक्के ने। हालेलुया। मैंने कहा डालें, करेंगे, और वो 1 लाख एंड तक नहीं निकलिया। मैं हूँ बिचों बिच सर जी किन्ना लिया जे, हूँ मैं चुप कर, मैं यार वो लक निकलन नहीं दिया, आंदे ने किन्ना लिया ये दसन। आप समझ रहे हैं? 2.5 लाख रुपया खुदावंद ने कहा जिवें दिल कर दी पका। 2.5 लाख रुपया मुझे दिया खुदावंद ने दिया, उन्हें कहा जिवें दा दिल कर दी पका। ठीक है, आप बादशाही, आप अपनी ब्लेसिंग पर ध्यान दो, अपनी ताकत पर ध्यान दिया करो, पैसे पर ध्यान नहीं दिया करो। जब आपके पास पैसा है, पैसे वाल ध्यान है, आप अपनी मेहनत वाल ध्यान देना। पास्टर कलीसिया वाल ध्यान देवे, पास्टर प्रेयर वाल ध्यान देवे, पास्टर बाइबल सुनाने वाल ध्यान देवे, पास्टर शिफा वाल ध्यान देवे, पैसे वाल ध्यान ना देवे। पैसा अपना रब आप कलेगा, पैसे आपां दा रब। कलीसिया ताड़ा शोर, क्योंकि ताड़ा रब, सुचे रब को बहन वाले लोग कभी भूखे नहीं मरते। बाइबल पढ़ो, वहां पर बुजुर्ग दाऊद कहता है मैं बच्चा था, अब बूढ़ा हूं, पर मैंने साधक को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। साधक को कभी मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा। आप बाइबल पर ईमान लाओ, वचन पर, कलाम पर ध्यान करो, जिंदगी में आप कभी कमजोर नहीं होंगे, कभी भी आप कमजोर नहीं होंगे। प्रॉब्लम तब है जब आप अपने फाइनेंस पर ध्यान देते हो, अपने खुदा पर ध्यान दो, अपने कामों पर ध्यान दो, अपने आप पर कभी मत ध्यान दो। आप बढ़ोगे, एक दिन आप देखेंगे खुदा का जला। अपनी बरकत में परहेजगार रहना, अपने छोटे से आशियाने के अंदर परहेजगारी रखना। आपका आशियाना छोटा हो बड़ा हो, आपका चर्च छोटा हो या बड़ा हो, उसमें परहेजगारी रखो। देखो खुदावंद आपको बड़ी बादशाही देगा, आपको बड़ी बात। मैंने कहा दाऊद की बादशाही उजड़ी, सुलेमान का किंगडम उजड़ गया, सिर्फ ना परहेजगारी। सुलेमान शमशून जोरावर बंदा था, उसका किंगडम खराब हो गया, परहेजगार नहीं था। लेकिन वो लोग जो परहेजगार हैं, उनके घर कायम रहेंगे, उनकी नस्लें कायम रहेंगी, उनकी पीढ़ियां कायम रहेंगी, उनके चर्च कायम रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो लोग परहेजगार हैं और वो परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। मैं एक जगह पर खड़ा था और मैंने कहा यार ये सियालकोटी है, आंदा पादरी साहब तुसी नारा बदल दिता है, पहले लोग आंदे ने सियालकोटी ते की कहते हैं लोग, सियालकोटी ते डैश डैश, ठीक हो गया। मैं आख्या नहीं, सियालकोटी बनेगी यसू दी वोटी। हालेलुया। आप बढ़ेंगे, आप अपने आप को कमजोर मत समझो। अजे ढिले ढिले रहंदे ना, एवें टुटे टुटे की होए भरावा दिल नहीं लगदा मेरा, एडा तो सारा दिल है भैड़ियो जी, वो ही नहीं लगदा। ते जे रब वड्डा दिल दिता वो किथे लाओगे? इसलिए खुदा तानू दिल ही छोटे दिते ने, किते लगणी ना किते। आमीन। कितों को समझ आइए? हालेलुया। अपना हाथ हिलाएं। अपनी बरकत के अंदर परहेजगार रहना है, अपनी ब्लेसिंग के अंदर परहेजगार रहें, अपनी अथॉरिटी के अंदर परहेजगार देखें, फिर देखें खुदावंद आपको बढ़ाते हैं, फिर देखें खुदावंद आपके साथ काम करते हैं। हालेलुया।